Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. So today we are going to start with the third chapter, that is data leak layer. Okay, so according to the syllabus, first we'll go through that what are the topic, what is the content in the third chapter, because the content has been changed. Okay, from last year, as per the comparison with the last year, the content has been changed. Let us see the content. This is the third chapter, that is data leak layer. As I told you, these chapters are nothing but the name of layers only. Okay, so this is the layer 1, layer 2, this is network layer, layer 3, then we have transport layer, layer 4. Okay, then we have application layer directly. Okay, because after transport, session presentation layers are having some standard tasks. Okay, कुछ भी हो जाए, they have to perform that particular standard task, so that is not mentioned. That is we have already seen in the first chapter, that is in the briefing one only. Okay, so session layer was just focusing and just concentrating on the maintenance of the session, establishing the link, then maintaining the link, then maintaining the session. Then if there's any issue, then in order to recover that particular session, and last, after completion, they have to terminate the connection or terminate the session. So that session layer was dealing with that particular part only. Then presentation layer was dealing with just to present the content in the compatible format which is required by the receiver. Okay, so your presentation layer is just looking out for the presentation part. So these two part are just static part, and we cannot mention them over here. We cannot just cover them as a chapter, but these layers are worth being a chapter. Okay, so after fifth chapter, we have a last chapter, that is sixth chapter, that is the application layer. As I told you, that in this particular application layer, we will be learning about the different protocols like DNS, then HTTP, SMTP, Telnet, FTP, DHCP. So all these protocols are there. Examination question is will be there from this particular chapter as a short notes, as we have already seen. I think आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, because आप लोग को फर्स्ट ईयर खाली मिला, फिर आप लोग को फिजिकली फर्स्ट ईयर मिला है शायद. तो इसमें शॉर्ट नोट्स होती है. लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, इसमें शॉर्ट नोट्स होती है. तो उसके अंदर यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द गिवन टॉपिक. सो दीज प्रोटोकॉल्स कम्स ओवर देयर ऑन. ठीक है, सो दिस इज आवर सिलेबस. थोड़ा सा डिस्कस करते रहते हैं हम लोग, सो दैट यू विल बी नोइंग एंड यू विल बी कमिंग going through the topics, okay, what we are covering. Okay, so just focus on right now, just focus on the third chapter, that is data leak layer. Okay, so in this data link layer, we'll be learning about the data link layer ke design issues. That is what are the services they are providing. Okay, in the services there is a framing, as we know that it perform the framing part. It also perform error control, flow control. We have error detection and correction mechanism. Okay, so we have Hamming code, CRC, checksum. So these things will be learning about these things. Okay, so ये error detection correction में होता है. ठीक है, because you know that कि if any of the frame contains an error, then this is the responsibility of the layer. This is the responsibility of the current layer to remove that error at this stage only. Okay, otherwise what will happen, that particular error will be percolated in the next layer, and then the next layer will consider it as a part of the data. ठीक है, और फिर वो आगे चल के प्रॉब्लम बनती जाएंगे. ठीक है, जैसे हम लोग होते हैं ना कि bugs follow bugs. Okay, so in the same way error follows error, and one error generate another error. Okay, so in the same way multiple errors will be generated, and you will not come to know that okay, this is the error, and you were just treating it like a simple data or normal data, but it was an error. So we'll be dealing with error detection and correction mechanisms. Okay, then we have data link protocols, stop and wait protocol, sliding window, go back and selective repeat. So these all comes under the different types of elementary data link protocols. Okay, so ये इसका first part है. Then after in the second part, this is important and you need to learn it properly. You need to understand it properly, because
we have second part, that is medium access control sublayer. Okay, in this session you will be learning about when a single channel is allocated for multiple users, when a single channel is allocated for multiple user, and when multiple user will access that particular layer, when multiple users access that particular channel, or we can say medium. So what happens, uh, you know uh, we have to control the access. Okay, so we have to control the access of the medium. Okay, so for example हम लोग बोलते हैं ना कि एक डोर है. Okay, and from that particular door we are just controlling, जैसे गेट होता है, कॉलेज का गेट होता है. So why watchman sits over there? Okay, so because he has to control the persons who are coming inside the college. Okay, so he has to control or she has to control, because हमारे पास तो एक लेडी सिंगम भी है. So she or he has to, the watchman has to control. एक सेकेंड. ओके, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था. ओके, सो इन दिस, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हमारे गेट पर, कॉलेज के गेट पर देयर इज अ वॉचमैन. ओके, एंड दैट वॉचमैन इज कंट्रोलिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन बोलूंगा मैं, ट्रैफिक. ओके, सो जिसको किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, सो ये वो पूरा मैनेज करता है. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर डोर, सिंपल डोर. ओके, सो एट अ टाइम हम लोग को पता है कि हमारे एट अ टाइम कितने लोग जा सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं एट अ टाइम. ठीक है, अगर 3 लोग जाने की कोशिश करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कोलिजन. ओके, कुछ तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, अवॉइड करना है. सो यू कैन जस्ट थिंक दैट आवर डोर is nothing but a channel, or we can say medium. Okay, and we are the multiple users, me myself, myself. Okay, my brother. Okay, my sister. Okay, so we all are trying to go out of this particular door. Okay, so what will happen, there will be clashes. Okay, and we won't go outside because हम लोग तीनों एक साथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं. So what we have to do, that particular door has to be controlled. Okay, and how it can be controlled, we can control it in this way. Okay, first of all, okay, person number 1 will be allowed to go outside. Okay, so we have control कि भाई चल पहले तू चला जा, फिर तू चला जा, फिर तू चला जा. In this way it can be managed. Okay, so this is all about this medium के एक्सेस को कंट्रोल करना. जो हमारा मीडियम है, जहाँ से हमारा सारे सिग्नल्स जाते हैं. ओके, सो दैट मीडियम का जो एक्सेस है, कौन इस मीडियम को कब एक्सेस करेगा, so that has to be controlled. Okay, and for that purpose we are having different types of protocols. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं multiple access protocol. Okay, and these protocols are nothing but Aloha protocol and CSMA, that is carrier sense multiple access protocol. इसके पहले हमारे पास में 2 और प्रोटोकॉल थे, लेकिन उसको अभी सिलेबस से निकाल दिए. पहले हमारे टोटल जो प्रोटोकॉल्स थे हमारे पास में वो थे अलोहा प्रोटोकॉल, देन CSMA CD एंड CSMA CA. तो CSMA CD यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन हमने दिया नहीं. तो CSMA CA करके और था, जिसको हम लोग बोलते थे CSMA, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. ये जो CD है आपका, वो है कोलिजन डिटेक्शन. एक और था CA, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस. तो दीज वर द 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ द CSMA. उसके बाद में हमारा ये है. ओके, सो ये पूरा आपका एक जस्ट फोकस है, मतलब एक पूरा समरी है पूरा आपके चैप्टर का. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 3.1.
we'll start with the design, data link layer design issues, okay, or we'll see the services, okay, whatever topics come first. So as we have seen that a data link layer is a combination of your data link control plus medium access control, as we had a discussion about that only, कि दोनों चीजों का combination है. And coming to the services, I have mentioned lot of services and the points which were very important to uh, for the examination point of view. So मैंने इसको सबको mention किया हूँ, okay. तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. थोड़ा पहले थोड़ा मतलब डिस्कशन रहेगा ये, काफ़ी आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है. बिकॉज ये अगर बेसिक और जो बेसिक थियोरी पार्ट है, आप लोग भी सोचेंगे सर तो एकदम थियोरी पार्ट है, हमको बोर लगेगा, ठीक है. So this theory part becomes the practical one later in the later topics, okay. So just try to understand this focus and just try to memorize the important point, okay. जो points मैं आप लोग को बताऊँ, because I have mentioned all the points which I have written over here, so those are important on them, okay. As we know that this particular layer is located between the physical and the data link layer, sorry, the physical layer and the network layer के बीच में आपका जो data link layer है, okay, that's a very common point. The data link layer provides. अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि सर ये भी हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, हालांकि this is the very common thing, but yes, you have to write this statement also, okay. Yes, our data link layer is located between the physical layer and the network layer. Your DLL, that is data link layer, provides services to the network layer. It receives services from the physical layer. Okay, as we have seen the diagram of the first chapter itself, that your data link layer will be getting the services from the upper layer. Upper layer में कौन है? Network layer. So the services will be the data link layer provides services to the. अभी यहाँ पर जो है ना पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ठीक है. पर्सपेक्टिव ऐसा है कि if you are at the center side, then you will be receiving the services from the upper layer, and when you are at the receiver side, then you will be giving the services to the upper layer, that is to the network layer, okay. So the perspective gets changed, then the statement will also change, okay. तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है इन सेंस के रिसीवर साइड का लिखा हुआ है, ठीक है. The duty scope of the data link layer is node to node, as we have already seen in the diagram. That diagram में your data link layer is responsible to deliver a packet or deliver a data information from node to node, okay, from one node to next node, okay. If you remember that diagram, then it's okay. Otherwise, I need to recall that diagram. आई थिंक अभी इसको हम लोग रिकॉल नहीं करते हैं, बिकॉज उसके लिए फिर और टाइम जाएगा हमारा. तो नोड टू नोड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं हम लोग को. ये मेरे को ओपन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज कैसे है, दिस इज योर डेटा लिंक लेयर, ओके. एंड वाई मैं ये डायग्राम आपको क्यों बता रहा हूँ, सी दिस इज होप टू होप डिलीवरी, नोड टू नोड. अच्छा, होप टू होप और नोड टू नोड एक ही बात है, ठीक है. So they have just mentioned like hope to hope delivery, hope to hope delivery, and hope to hope delivery. Okay, so for this scene, for this situation, the source was A and the destination was F. Okay, so what happened? Our packet was delivered to the next node, and the next node was B. Okay, which was located over here. Okay, so this first hope was covered, then second hope was covered, then third hope was covered. So hope equals to the count becomes 3, and we have reached to the destination, okay. So this is hope to hope delivery. This is your data link layer which is providing. आगे और काम पड़ेगा इसका हम लोग को, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं. When a packet is traveling in the internet, the data link layer of a node host is responsible for delivering a datagram to the next node. As यहाँ पर वापस diagram देखते हैं. So this particular node is responsible to deliver this packet or this information from this particular node to this node. यहाँ तक पहुँचा दे, इसकी responsibility खत्म. Now this is the responsibility of B router or this particular node to deliver this packet to the next node. Okay, now what is the next node? Your next node is E node, that is the router E. Okay, so your B is responsible to deliver a packet from this end to this end. ठीक है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके,
यहाँ तक पहुंचाने के बाद में फिर इसके बाद में अभी देखते हैं, अब ये नाउ योर ई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर पैकेट फ्रॉम दिस ई टू एफ, या फ्रॉम ई टू द नेक्स्ट नोड. Okay, so here each and every node is responsible for carrying the packet from one node to the next node. Okay, फिर next node is responsible, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले ज़माने में कैसा था, यहाँ से मतलब वो जो कुछ भी अगर मैसेज देना होता, तो यहाँ से वहाँ तक इसके पास में ले जाकर दे दिए, फिर वो आदमी थक गया, फिर वहाँ से फिर वो किसी और मतलब और आगे 2-3 किलोमीटर ले जाकर देता था, फिर वहाँ से वो और आगे, इन द सेम वे थोड़ा सा ऐसा चलता रहता था. तो वो एक मैसेज भेजने का एक ऐसा मेथड था. तो इन द सेम वे यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं. यूर ए इज रिस्पॉन्सिबल टू cover the distance from A to B. Okay, when it reaches to B, now your B has a responsibility, or B is responsible to deliver that packet or deliver that message to the next node. Okay, अब वो भी यहाँ पर भी हम लोग को पता है हमारा डेस्टिनेशन यहीं पर है, तो हम लोग यहीं पर जा रहे हैं बराबर, तो यहाँ से यहाँ एंड सो ऑन. ओके, for this purpose the data link layer of the sending node needs to encapsulate. देखो मैंने सारे पॉइंट्स निकाले हो ना, ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये पॉइंट्स ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी अच्छे हैं. ओके, सो मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि मेरी जो स्लाइड्स होती है, these slides are not simple, just not a slide. Okay, these are notes also. Okay, you can just refer it and you can take the data from here. Okay, so for this purpose your data link layer, what will it will do, your data link layer of the sending node needs to encapsulate the datagram received from the network in the frame. Okay, अब यहाँ पर थोड़ा सा ओके, सो यहाँ पर अभी क्या होगा हमारा भी, अगर थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ओके, in this diagram you can see तो यहाँ पर हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करेगा, इट विल रिसीव द थिंग, okay, again sorry for that. Okay, so we were talking about this the last point. Okay, encapsulation and decapsulation की हम लोग बात कर रहे थे कि encapsulation is always done at the center side and decapsulation is always done at the receiver side. So what your data link layer is going to do, it will receive the packet from the network layer, that is upper layer. It will encapsulate the things in some will some wrap up करेंगे इसको थोड़ा सा बॉक्सिंग में, और जो भी करना है इसको करेंगे, एंड इट विल सेंड टू द फिजिकल लेयर. देन फिजिकल लेयर को आगे सेंड करेगा, यहाँ से डेटा आपका पहुंचेगा रिसीवर तक, रिसीवर के पास में जब पहुंचेगा देन इट विल बी रिसीव बाय फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर उसको क्या करेगा, कंबाइन करके डेटा लिंक लेयर को देगा, डेटा लिंक लेयर उसको क्या करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा. ठीक है, डीकैप्सुलेशन क्या होगा, जो रैप अप किया था, जो बॉक्सिंग किया था, वो बॉक्सिंग को हटा देंगे, दैट इज द डीकैप्सुलेशन. So adding headers and other related information is at the sender side is called as encapsulation, and removing all those information, all those headers and other things at the receiver side is called as decapsulation. ठीक है, so encapsulation does इसका encapsulation is at the sender side and decapsulation is at the receiver side. ठीक है, तो ये जो पॉइंट था वो उसी के बारे में था. डीएलसी सर्विसेज के अंदर मेन तो हम लोगों ने सर्विसेज देखा है, दैट इज फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. अच्छा, one more thing is there, you will see that के मल्टीपल और we can say
number of points are there which are getting repeated, after that, after one another slide, okay, you can see कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि रिपीट होते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो जस्ट गेट इट रिपीटेड, उसको होने दो रिपीट, ओके, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। बार बार चीजें आएंगी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। So your data link control deals with procedures for communication between the two adjacent node. Okay. Now who are those two adjacent node? Those two adjacent nodes are nothing but these two nodes, like the A, B, या फिर B and E, या फिर E and F. Okay. So these are two adjacent node. Node to node communication, no matter whether the link is dedicated or broadcast, but node to node communication होना चाहिए. Okay. So your DLC, your data link control will provide the communication between the two adjacent node. Okay. After that, data link control functions include framing. अब framing के बारे में हम लोगों ने खाली इतना ही पढ़ा कि framing में क्या होता है, आपके डेटा को क्या करते हैं, एक अच्छे से बॉक्स में रखते हैं, उसको बंद करते हैं, सेलो टेप लगाते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा गिफ्ट का जो पेज होता है, जो कवर होता है, वो अच्छा सा लगाते हैं, अच्छे से क्या उसको उसमें उसको रैप अप करेंगे, अच्छे से उसके ऊपर एड्रेस वगैरह लगाएंगे, ये हो गया आपका फ्रेमिंग, ठीक है। तो मतलब फ्रेमिंग हमारे दुनिया में अलग है, इनकी दुनिया में फ्रेमिंग भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। सो जो आपके डीएलसी जो सर्विसेज है, उसके अंदर जो मेन सर्विस है वो है फ्रेमिंग। देन उसके बाद में है फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, दीज टू सर्विसेज यू आर गोइंग टू सी एवरीवेयर, ओके। Almost in all the layers, at all the layers you will see these two services like flow control and error control, okay। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग से। अब फ्रेमिंग में क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू सी, ओके। विल नॉट गो इनटू द डेप्थ, बस मैंने यहाँ पर उसको एक्चुअली डिटेल में मैंने यहाँ पर कवर किया हूँ। पहले तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए थे, हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉन थ्रू द टॉपिक जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। पहला क्या था हमारा, हम लोग ने देखा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएलसी एंड एमएसी, ओके। देन उसके बाद में वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द सर्विसेज, द डिफरेंट और वी कैन से मिसलेनियस पॉइंट्स ऑफ द डेटा लिंक कंट्रोल, ओके। उसके बाद में डेटा लिंक कंट्रोल की जो सर्विसेज है मेन, वो है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेमिंग। मैं थोड़ा सा इसके लिए वापस से रिकैप करके लाता हूँ, सो दैट कहीं हम लोग चलते चलते कहीं पे यहाँ वहाँ हो जाते हैं, ठीक है। तो वापस से कवर करके उसको हम लोग टू द पॉइंट लाना है, बिकॉज द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ, ओके। तो उसके लिए प्रीवियस कॉन्सेप्ट या प्रीवियस चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो समझना या वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ओके। So we are going to learn about the framing, okay। We have two types of framing. One is called character oriented framing, or also called as the byte oriented framing, and we have another type of जिसको framing बोलते हैं हम लोग, वो है bit oriented framing, okay। So these two types of framing, or we also call it as a stuffing, okay। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में वी हैव अ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज फ्रेमिंग। So this is the first service which is provided by the data link layer, okay। And in this data link layer, at each node needs to encapsulate the datagram packet received from the network layer in the frame before sending it to the next node, okay। And we have to decapsulate it। तो यहाँ पर खाली इतना ही लिखा है कि what happens at the sender layer, there is a encapsulation process done at the sender side and receiver side पे decapsulation होता है, ठीक है। अच्छा, हर पैकेट को हर हर इसको क्या करना है, आपको इनकैप्सुलेट करना है, डेटाग्राम को इनकैप्सुलेट करना है। वॉट एवर द पैकेट विच यू आर रिसीविंग फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, उसको क्या करना है, इनकैप्सुलेट करना है एट द सेंडर साइड, ओके। और बाद में द नोड ऑल्सो नीड्स टू डिकैप्सुलेट द डेटाग्राम फ्रॉम द फ्रेम रिसीव्ड ऑन द लॉजिकल चैनल। मतलब अब द रिसीवर साइड पर क्या होगा, एट रिसीवर साइड your physical layer will send the data to the data link layer, okay। Now your data link layer has to what it has to do, it has to decapsulate the packet, ठीक है। decapsulate the datagram, देखो यहाँ पर उसको हम लोग ने datagram बोल रहे हैं। so datagram is nothing but your data only, ठीक है, whatever। तो उसको एक अच्छा सा नाम जो इन लोगों ने दिया है वो datagram करके। तो encapsulation done at the sender side, decapsulation done या जिसको बोलेंगे decapsulation at the receiver side।
Data transmission in the physical layer means moving bits from source to the destination. Okay, as we have seen, we have the layer 0. Your physical layer is also called as layer 0. Okay, what it does actually, it is transferring the data from one node to another node. Okay, from via transmission media or via some sort of cable. Okay, the data link layer, on other hand, we can say needs to pack bits into frames so that each frame is different from other. Okay, देखो यहाँ पर अब बात चल रही है आपके डेटा लिंक लेयर पे. ऑन द अदर हैंड वी कैन से नीड्स टू पैक बिट्स इनटू द फ्रेम्स. ठीक है, अब यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेमिंग की, तो हमारे पास जो भी हमारे बिट्स है, ठीक है, वॉट एवर एंड एब्सोल्युटली वॉट एवर डेटा वी आर हैविंग, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स ओनली. ओके, so what we have to do at in the process of framing, we have to pack these bits into the frame. Okay, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में कुछ बिट्स है, तो हमारे पास में फ्रेमिंग कैसी होंगी, ये हमारे पास में एक छोटा सा कार्टून बॉक्स है. ठीक है, सो इन दैट कार्टून बॉक्स वी आर गोइंग टू पिक एंड पुट ऑल दोज बिट्स. ओके, जितने भी उसके अंदर आ सकते हैं उतने सारे हम लोग उठा के इसमें रखेंगे, उसको हम लोग पैक करेंगे. ओके, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, उसके ऊपर अच्छे से एड्रेस वगैरह डालेंगे. ये हो गया आपकी फ्रेमिंग. ओके, you can just take an example of our postal system. What we used to do in our postal system, we have a postcard. I think people have used or not, I don't know, but पहले हम लोग ने यूज किया है. तो पोस्ट कार्ड आपका होता था येलो कलर का, उसमें यू नीड टू, अच्छा पोस्ट कार्ड तो सिंपल जो है तो एक 25 पैसे वाला या फिर उससे भी कम कीमत का आता था. तो वो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो भी आपको कंटेंट लिखना है, एक साइड पे कंटेंट लिख दो, फिर अदर साइड पे उसका एड्रेस वगैरह लिख दो. वो सब करने के बाद में आपने क्या किया, इसके अंदर आपने कंटेंट भी पुट किया, और कंटेंट पुट किया आपने, उसके ऊपर एड्रेस भी लगाया. ठीक है, तो हमारा पोस्टल सिस्टम. या फिर आप अगर कभी कुछ पार्सल भेजना चाह रहे हैं किसी को, ठीक है, तो इफ यू वांट टू सेंड सम पार्सल टू द पर्सन हु इज फार अवे फ्रॉम अस, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड द सर्विसेज ऑफ द पोस्टल सिस्टम. हम लोग अपना पार्सल को अच्छे से बैकअप वगैरह करके उनके पास देते हैं, एड्रेस वगैरह लगा के. उन लोग क्या करते हैं, फिर उसको फिर अपना हेडर लगाएंगे. उन लोग उसको क्या करेंगे, अपना हेडर लगाएंगे. उन लोग देखेंगे कहाँ भेजना है, इसको बेंगलोर भेजना है. ओके, तो उन लोग क्या करेंगे, इसको रैप अप करके इसके ऊपर अपना सिक्का और अपनी इंफॉर्मेशन लगाएंगे कि इसको बेंगलोर भेजना है. ओके, नाउ जितना भी बेंगलोर जाने वाला सामान है वो एक साथ में चला जाएगा. बेंगलोर जाने के बाद में जब यहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले ने भेजे, यहाँ के पोस्ट ऑफिस वालों ने भेजे, वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले जब रिसीव करेंगे, बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस वाले जब रिसीव करेंगे, जो हेड पोस्ट ऑफिस है जब उन लोग रिसीव करेंगे, तो उसको जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि हाँ बेंगलोर में ये जगह पर है. ओके, सो व्हाट यू नो हाउ दिस सिस्टम इज गोइंग ऑन. तो वैसा ही कुछ सिस्टम हमारे फ्रेमिंग में भी चलता है. एक सेकेंड ना. करना okay, so this is about our postal system. So इन पोस्टल सिस्टम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेडर एक जो हमने हेडर लगाया, उसके बाद में एक हेडर जो पोस्ट ऑफिस वालों ने लगाया, फिर अच्छा वो दोनों हेडर तो लग गए. अब ये पहुंच गया बेंगलुरु. ठीक है, बेंगलोर में जो हेड पोस्ट ऑफिस है, वहां पर जो आउटर जो हेडर था वो उन लोगों ने निकाला. ठीक है, तो क्या हुआ, ये डीकैप्सुलेशन हुआ. यहाँ 2 बार इनकैप्सुलेशन हुआ. कैसे हुआ 2 बार, एक बार मैंने इनकैप्सुलेशन किया, एक बार मेरे मुंबई वालों ने मतलब मुंबई के पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, उसको इनकैप्सुलेट किया. ठीक है, 2 बार इनकैप्सुलेशन हुआ, मतलब 2 बार हेडर्स लगे. जब बेंगलोर पहुंच गया तो वहां जाने के बाद में वहां के हेड पोस्ट ऑफिस ने उसका एक बार डिकैप्सुलेशन किया, तो अंदर से एक पैकेज निकला. पैकेज के ऊपर एड्रेस भी है. ठीक है, अब वो क्या होगा, वो पैकेज मेरे फ्रेंड के घर पे मैंने भेजा, मेरे रिलेटिव के घर पे भेजा, तो पैकेट उन लोग रिसीव करेंगे, वहां पे जाएगा. वहां पे जाने के बाद में फिर जो जो बॉक्स है उसको फिर लोग क्या करेंगे, डिकैप्सुलेट करेंगे. मतलब दूसरी बार डिकैप्सुलेट हुआ, दो बार इनकैप्सुलेट हुआ था, 2 बार डिकैप्सुलेट हुआ, आपका डेटा आपके रिसीवर तक पहुंच गया. सो दिस इज आवर पोस्टल सिस्टम. ये एग्जांपल हमेशा हम लोग इसलिए देते हैं बिकॉज इसके अंदर
लेयरिंग है अलग अलग, मतलब 2 बार इंकैप्सुलेशन हुआ, 2 बार डिकैप्सुलेशन हुआ। तो यहाँ पर भी हमारे साथ में ऐसे ही कुछ होता है। सी, यहाँ से एक बार इंकैप्सुलेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमारा जो पैकेट है जो ऑलरेडी मतलब पैक्ड है, ठीक है, कोई ऐसा ओपन ओपन डेटा तो नहीं है। तो डेटा हमारा यहाँ पर है, हमारे ए ने क्या किया, इंकैप्सुलेट किया। इट विल सेंड द डेटा टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, नेक्स्ट नोड के पास भेजा। यहाँ भेजेगा, बी क्या करेगा, जो आउटर कवर है उसको निकालेगा और देखेगा अच्छा ये तो आगे जाने वाला डेटा है, ये तो हमारे पास का नहीं है। फिर बी क्या करेगा, उसको वापस से इनकैप्सुलेट करेगा, इनकैप्सुलेट करके उसको आगे ई के पास भेजेगा। आपका डेटा चलते 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 पहुंच गया ई के पास में, ठीक है। आफ्टर रीचिंग एट ई राउटर और ई नोड, व्हाट विल हैपन, ओके, नो ई विल चेक इट आउट एंड ई विल सी दैट के ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो किसी और के लिए। मतलब वो तो उसको डीकैप्सुलेट करना ही पड़ा ना, उसको डीकैप्सुलेट करके चेक किया उसने तो उसको समझ में ये आया, वापस से उसको इनकैप्सुलेट करेगा, उसमें फिर अपना एड्रेस डालेगा और फिर लास्ट में जो जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस डालेगा और आगे सेंड करेगा। तो हर नोड क्या कर रहा है यहाँ पर, हर नोड अपना अपना एड्रेस डाल रहा है सोर्स नोड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ए टू बी केस में व्हाट हैपन, सोर्स वाज ए एंड डेस्टिनेशन वाज बी, ओके। देन व्हेन दिस पर्टिकुलर datagram will be sent to the next node, then what will happen, your b will put the sender address as a b, okay, b अपना b मतलब अपना सेंटर डालेगा और डेस्टिनेशन e का डालेगा, okay, then e will check, e will decapsulate and will check, then what it will do, again it will encapsulate करेगा उसको, उसमें सेंडर e का डालेगा और रिसीवर f का डालेगा, ठीक है। तो ऐसा आपका होप टू होप, hope to hope, hope to hope. So this is hope to hope delivery in which is done in the data link layer. Okay. Framing in the data link layer separates a message from one source to the destination by adding a sender's address and the destination that हम लोग ने अभी देखा. The destination address defines where the packet is to go. The sender address helps the recipient acknowledge the receipt also. Although as we will see this particular later also that okay, for the whatever packet which will be received by the sender receiver, it has to send the acknowledgement। ये भाई मैं हम बोलते ना, हम कॉलेज जाते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं दूर, तो हम घर पे फोन करके बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गांव गया, ठीक है, जब मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ तो मुझे लगेंगे 8 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो ट्रेन से मुझे 8 आवर्स लगेंगे और 8 आवर्स में मैं घर पहुंच जाऊंगा, गांव में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सो इमीडिएटली मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 आवर्स, माय रिलेटिव्स एंड माय पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि भाई ये तो पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं वहां से अगर कॉल बैक कर दूं कि हाँ मैं पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है। अगर उतना टाइम होने के बाद में भी अगर मैंने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेन लेट हो गई या फिर मैं कहीं रुक गया, ठीक है, तो मैंने फोन नहीं किया, ठीक है, एंड द प्रोटोकॉल इज दैट के मतलब पहुंचने के बाद ही कॉल करूंगा। अगर ये आपका प्रोटोकॉल है, तो अगर मैं बीच में लेट हो गया तो इन लोग क्या करेंगे, फिर इन लोग भी फिर परेशान होंगे। सो दिस इज सिंपल स्कीम विच इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। According to the acknowledgement policy, whatever data is being received by the receiver, the receiver has to send an acknowledgement for that particular packet. If the acknowledgement is received by the sender, then sender will not send the next packet, okay, yeah, sorry, the sender will send the next packet because it is depend on the acknowledgement only, okay. Our connection oriented service is based on this only, okay. When receiver will receive the packet, then it has to send the acknowledgement to the sender, and when sender will receive an acknowledgement from the receiver, so it will send the next packet, ओके। अगर गलती से अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेंडर क्या समझेगा, भाई हो सकता है ये जो पैकेट है कहीं मर खप गया हो, ठीक है, या कहीं पे ड्रॉप हो गया हो, कहीं पर लॉस हो गया हो। सो व्हाट योर सेंडर विल डू, सेंडर इज हैविंग सम ऑफ द सेंडर इज हैविंग सम पॉलिसी लाइक, भाई देख, जाने के लिए यहाँ से बी तक, ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, आने के लिए 2 मिनट। तो 4 मिनट में अगर कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पैकेट को रीसेंड करेंगे। सो दिस इज द पॉलिसी सम ऑफ द सेंडर यूज टू इम्प्लीमेंट, ओके। तो ये एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी है। तो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे चल के, तो जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोग को मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। Although the whole message could be packed in one frame, that is not normally done, as you also know
आप पूरी वीडियो फाइल को 700 MB की वीडियो फाइल है आपकी, तो उसको आप एज इट इज सेंड कर देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. रीजन वाई? बिकॉज दिस इज द लार्ज फाइल. ओके, what we have to done, we have to frame it. Okay, and for error detection, for retransmission purpose, this will be very simple for and very efficient for us. Okay, अगर आप पूरी एक कंप्लीट फाइल को साथ में भेजना चाहेंगे तो नहीं जाएंगी, वो हमेशा फ्रेम्स में जाएंगी, हमेशा पार्ट में जाएंगी. ओके, इससे 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 हमारा फायदा ये होगा कि इन केस अगर किसी पार्ट में, किसी फ्रेम के अंदर अगर एरर आ जाता है, तो उसी उसी फ्रेम को, उसी पार्ट को आपको रीसेंड करना पड़ेगा, ना कि पूरी फाइल को सेंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज वन एडवांटेज वी कैन हैव यूजिंग द फ्रेमिंग आल्सो. एंड रीट्रांसमिशन अगर करना पड़ा किसी वजह से, तो आपको उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी. ओके, so all about the framing. Now coming to the two types of framing, that is character oriented framing and मतलब बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग और बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. ठीक है, यहाँ पर है. ठीक है, अब उसके अंदर एक उनके स्पेसिफिक मेथड्स है. ठीक है, तो वो मेथड्स को खाली बस याद रखना है. इसमें ज़्यादा हम लोग डीप में जाते नहीं है, बिकॉज फ्रेमिंग को एक अलग से क्वेश्चन पूछता नहीं है. और ये सब चीज़ इसलिए है कि अगर फ्रेमिंग का अलग से क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग, लाइक ये पूरा डायग्राम और ये सब पूरा ये करना होता है. अभी आप लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं जरा. ठीक है, सो व्हाट इज कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, या फिर इसका और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग. ठीक है, तो स्टफिंग एंड अनस्टफिंग, एंड ऑब्वियसली यू विल, अगर आप लोग स्मार्ट हो तो समझ जाएंगे कि स्टफिंग इज ऑलवेज डन एट द सेंटर साइड एंड अनस्टफिंग इज ऑलवेज डन एट द रिसीवर साइड. स्टफिंग क्या होता है? कुछ भरना. ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं स्टफिंग, पुटिंग समथिंग एक्स्ट्रा गार्बेज इनटू समवन. ठीक है, तो कुछ स्टफ करना होता है. फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेम है आपके, कुछ आपका डेटा है, तो उस फ्रेम के अंदर कुछ और ऐड करना, स्टफ करना सेंडर साइड पे, और रिसीवर साइड पे उसको अनस्टफ करना. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे दो टाइप्स है, तो वो है कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग और बाइट ओरिएंटेड स्टफिंग, और दूसरा है बिट ओरिएंटेड स्टफिंग. ओके, ऑब्वियसली आप ये तो समझ गए होंगे कि बाइट ओरिएंटेड में कंप्लीट बाइट, वन कंप्लीट बाइट दैट इज 8 बिट आर एडेड और स्टफ्ड इनसाइड द डेटाग्राम, और बिट ओरिएंटेड के अंदर अ सिंगल बिट इज स्टफ्ड और सिंगल बिट इज एडेड इनटू द डेटाग्राम एट द सेंडर साइड एंड सेम इज अनस्टफ्ड एट द रिसीवर साइड. ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है. एक जगह पे एक कंप्लीट बाइट मतलब कि 8 बिट ऐड हो रहे हैं और निकल रहे हैं. ठीक है, स्टफिंग अनस्टफिंग. और बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर और सिंगल बिट ऐड हो रहा है और सिंगल बिट निकल रहा है. ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो उसको हम लोग करते हैं कल. ठीक है, बिकॉज अभी हो गया है टाइम, तो ऐसा ना हो कि, ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पर. दिस इज 10:44, वरना फिर इसको हम लोग उठाएंगे टॉपिक को तो फिर और लंबा जाएगा फिर. ओके, सो मैंने बीच में आप लोग को पूछा नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम लोगों ने अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है. ठीक है, सो यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ तो ऐसी हुई नहीं है, बट स्टिल आई एम आस्किंग एनीवन हैज़ एनी डाउट. अभी तक जो किए हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने जस्ट डेटा लिंक लेयर को स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने जो क्या क्या किया, हम लोगों ने जो फ्रेमिंग था, जिसका जो फर्स्ट सर्विस थी फ्रेमिंग, वो फ्रेमिंग हम लोगों ने किया है. ठीक है, और वो भी उसका भी आधा ही पार्ट हुआ है, आधा पार्ट अभी बाकी है. तो समझ में आया आप लोग को यही? समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, सिंपल है. इसमें ज़्यादातर आप लोग को चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि आप लोग को मदद में समझना कुछ नहीं है, आपको इसमें याद रखना है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी जगह आपको फ्रेम्स, उनके फील्ड्स, उसमें कौन कौन सी फील्ड्स है, उनकी साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखने की है. इसमें आपको मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है या आपको इसमें समझना है, तो उसमें आप खाली आपको याद रखना है, चीज़ों को याद रखना है. ठीक है,
तो होप सो याद रहे आप लोग को, और कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके दोनों टाइप्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हालांकि इतना भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। सेकंड जो उसका सर्विस है वो है फ्लो कंट्रोल। तो विल लर्न अबाउट द फ्लो कंट्रोल आल्सो, एंड देन आफ्टरवर्ड एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के बाद में एक आता है कंजेशन कंट्रोल आल्सो, in which we have two types of कंजेशन कंट्रोल, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। चलो अभी मैं इतना की वो कर रहा हूँ। सो we'll stop over here. I'll stop the recording of this